अकाउंट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एग्जाम्पल नंबर 2। हियर इज 31st March 2015 and 31st March 2016. Equity share capital 20 lakhs, 30 lakhs. 10% preference share capital 2 lakhs, 1 lakhs. Security premium reserve not given 95,000. Profit and loss balance 4 lakhs, 8 lakhs. 10% debenture 10 lakhs, 10 lakhs. Some additional information. Fresh equity shares were issued on 31st March 2016 at a premium of 10%. Interim dividend was paid on equity share at the rate of 8%. Preference shares were redeemed on 31st March 2016 at a premium of 5%. Premium on redemption was charged against premium received on issue of fresh equity shares. Calculation of cash flow from financing activity. Working notes. Here is number 2. Interim dividend was paid on equity share 8%. Interim dividend 8% निकालना है। यहाँ पर 2015 का भी वैल्यू है और 2016 का भी। तो जब भी हम लोग इंटरेस्ट डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं वो प्रीवियस ईयर के अमाउंट से करते हैं। तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट क्या है? 20 lakhs है। Then interim dividend is equal to 8/100 into 20 lakhs. Then it's become rupees 1,60,000. Interim dividend amount is rupees 1,60,000. Next, 10% preference share. 10%, यहाँ जो 10% रहता है ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ जो आप 10% देख रहे हैं ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देन इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर, इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर 10%, 10/100 और कैलकुलेट किससे करेंगे हम लोग? प्रीवियस ईयर के अमाउंट से 2 lakh. Then here is 2 lakh. So amount is rupees 20,000. Next is 10% debenture. 10%. This is the rate of interest on debenture. 10%. And initial value is previous year का value क्या है? 10 lakh. So 10% that means 10/100 into 10 lakhs. Interest on debenture. So interest on debenture is rupees 1 lakh. Interest on debenture is rupees 1 lakh. Dear student, आपको ये ध्यान रखना है कि हमने जो यहाँ पर कैलकुलेट किया डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर, इंटरेस्ट ऑन debenture, if there is given the value of dividend, interest on preference share, interest on debenture, that time we don't calculate like this. नहीं समझे? अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहले से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया हुआ रहता, इंटरेस्ट पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ रहता, डिविडेंड पेड दिया हुआ रहता, देन यहाँ जो परसेंटेज रहता है उसके द्वारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है
और जब भी डिबेंचर लिखाएगा तो यहाँ पर कोई परसेंटेज होगा, जब भी प्रेफरेंस शेयर होगा तो यहाँ पर। तो आपको ये समझना है कि कब निकालना है कब नहीं निकालना है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड पेड ये निकाला हुआ रहता, दिया हुआ रहता, तो हम लोग या आपको ये सब कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। हियर इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2016. So here first is equity share capital. Beginning 20 lakhs, final 30 lakhs. Here increase in the value of equity share capital. That means proceed from issue of equity share capital. आप यहाँ क्या देख रहे हो? 2015 में कितना था? 20 लाख। 2016 में ये क्या हो गया? 30 लाख। तो यहाँ जो है इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज का मतलब है कि कंपनी में कैश का इनफ्लो हुआ। अमाउंट इंक्रीज करने का मतलब है इनफ्लो ऑफ कैश। तो इनफ्लो कब होता है? जब हम शेयर इशू करते हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। हाउ मच अमाउंट? 10 lakhs. How much amount? 10 lakhs. Now related additional information to equity share capital. Fresh equity share capital issued on 31st March at a premium of 10%. So 10% of 10 lakhs. 10% of 10 lakhs, the value is 1 lakh. Here I have find out the premium on equity share. 10 lakhs हमने कितने का शेयर इशू किया? 10 lakhs का, और उसका प्रीमियम का परसेंटेज कितना है? 10% है। सो प्रीमियम अकाउंट इज ₹1 lakh. So 10 lakh plus 1 lakhs become 11 lakhs. So this is complete. Next is 10% preference share capital. Initial value is 2 lakhs, final is 1 lakh. Here is decrease in the value of preference share capital. तो जब भी डिक्रीज की बात होगी दैट मीन्स यहां पर होगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जब भी अमाउंट डिक्रीज करेगा, 2015 में प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू 2 लाख था और 2016 में कितना हो गया? 1 लाख हो गया। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होता है दैट मीन्स क्या हो रहा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रीपेमेंट हो रहा है, रिडेम्पशन हो रहा है। हाउ मच? 2 lakhs minus 1 lakhs, 1 lakh। यहां पर आप देखिए ये 1 लाख का क्या हो रहा है? रिडेम्पशन हो रहा है, कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर को लौटाया जा रहा है। अब हम प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में। प्रेफरेंस शेयर वेर रिडीम ऑन 31st March एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। रिडेम्पशन 5% प्रीमियम में हो रहा है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ 5%, और कितना का रिडीम कर रहे हैं हम? 1 लाख का। दैट मीन्स प्रीमियम अमाउंट इज ₹5,000। सो 1 लाख प्लस 5,000, ये जो आप यहां पर 1 लाख देख रहे हैं ये रिडेम्पशन अमाउंट है। रिडेम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर 1 लाख हम लौटा रहे हैं,
और प्रीमियम अमाउंट कितना है 5000। दैट मीन्स हम उसको कितना लौटा रहे हैं 1,05,000 माइनस में। दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। जब आपको लगेगा कि आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है तो उसको आप माइनस में करेंगे, और जब आपको लगेगा इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है तो उसको आप क्या करेंगे प्लस में करेंगे। नाउ नेक्स्ट, ये कंप्लीट हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था प्रीमियम का अमाउंट, इसलिए इसका यहां पर कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट है 10% डिबेंचर, 10 lakhs 10 lakhs, there is no change in the value of debenture. That means here is neither issue of debenture not redemption of debenture. अगर दोनों अमाउंट सेम हो, इनिशियल भी और फाइनल भी, इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटेड डिबेंचर ना तो यहां पर डिबेंचर इशू हो रहा है और ना ही डिबेंचर का रिडेम्पशन हो रहा है। सो देयर इज नॉट इशू ऑफ डिबेंचर और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट इज interim dividend was paid on equity share at 8%. Equity share initial value how much 20 lakhs initial value। जब भी हम किसी का इंटरेस्ट निकालते हैं डिविडेंड निकालते हैं तो किस अमाउंट पर निकालते हैं इनिशियल वैल्यू पर, प्रीवियस ईयर के वैल्यू पर। तो प्रीवियस ईयर का वैल्यू कितना है 20,000 और रेट क्या है 8%। 8% ऑफ 20,000 दैट मीन्स 1,60,000। हियर इज डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर इज 1,60,000। नेक्स्ट इज here is mentioned 10% preference share, 10% preference share, that means rate of interest is 10%। 10% किसका इनिशियल वैल्यू का, प्रेफरेंस शेयर का इनिशियल वैल्यू क्या है 2 lakhs। सो 10% ऑफ 2 lakh दैट मीन्स 20,000। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज 20,000। यहां पर पेड हो रहा है दैट मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश, इसलिए ये सब क्या चीज में हो रहा है माइनस में हो रहा है। नेक्स्ट इज 10% डिबेंचर। ये 10% क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इनिशियल वैल्यू 10 lakhs। सो 10% ऑफ 10 lakh दैट मीन्स इट विल बी 1 lakh। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 1 lakh। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज 1 lakh। यहां पर पेड दैट मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश। नाउ देयर इज नॉट एनी एंट्री लेफ्ट टू रिकॉर्ड हियर। अब यहां पर कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है, कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिसका यूज हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में करते हैं। सो हेयर इज सम ऑफ द नंबर आर इज इन प्लस एंड सम ऑफ द नंबर आर इज इन माइनस। प्लस में जो भी नंबर है इसका मतलब यहाँ पर कैश इनफ्लो हो रहा है, और जो भी नंबर माइनस में है दैट मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश है। नाउ कैलकुलेशन, जितने भी प्लस वाले हैं उसको एक साथ प्लस करेंगे और जितने भी माइनस वाले हैं उसको एक साथ प्लस करेंगे, फिर दोनों को आपस में हम कैलकुलेट करेंगे। देन वी गेट रिजल्ट इज
7,15,000. We get result is 7,15,000 and also is in plus. तो जब प्लस में रिजल्ट आएगा देन वी हैव टू राइट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर प्लस में आएगा तो फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यही अगर माइनस में आता तो हम लिखते नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये जो अमाउंट हमारा 7,15,000 आया है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको उठा करके कहाँ रख देंगे, अमाउंट के कॉलम में। कहाँ रख देंगे, अमाउंट के कॉलम में। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको हमेशा याद रखना है 4 एक्टिविटी से कैश इनफ्लो होता है आपके कंपनी में। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक उसी तरह से 4 तरह से रिपेमेंट होता है, जिसमें होता है आउटफ्लो ऑफ कैश, रिपेमेंट, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, रेडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रेडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो 4 × 2 8 एंट्रीज हो गई। अब आपका होगा उसमें क्या क्या, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो यही सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ये सब एक्टिविटी में हम ये सब आइटम का यूज करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।